whenever there is a question of age और age related problem आता है तो आपको प्रेजेंट एज को वेरिएबल एज्यूम करना है। ओके तो यहाँ पे कौन दो लोग हैं, जैकब एंड हिज सन। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is equal to x years. Okay, and the present age of his son is equal to y years. Okay, we have assumed the two variables. जैकब के प्रेजेंट एज को हमने x assume किया है और उसके सन के प्रेजेंट एज को हमने y assume किया है। नाउ सी इन केस वन 5 years hence यानी 5 साल बाद की केस है। ओके सो केस वन what it is 5 years, sorry, 5 years hence. What they have said, Jacob will be 3 times that of his son. ओके तो अभी देखो जैकब का आज का एज अगर x years है, जैकब का आज का एज अगर x years है तो 5 years later what will be the age of Jacob? 5 years later it will be X x plus plus 5. 5, x plus 5। जैकब का आज का एज अगर x years है तो 7 years ago what will be the age? X minus 7. Okay, so this concept we will be using here। तो यहाँ पे जैकब का एज लिख लेते हैं पहले। 5 साल बाद क्या होगा, जैकब्स एज what it will be x plus 5 and son's age what it will be y plus 5। ओके ये 5 साल बाद का एज है दोनों का। अभी हमको क्या बोला है, जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन, क्योंकि 5 साल बाद क्या होने वाला है, जैकब का जो एज रहेगा तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं जैकब इज 3 times ऑफ सन। और जैकब का एज क्या है, x plus 5, सो वी विल पुट हियर x plus 5 which is equal to 3 in bracket। सन का एज क्या है, y plus 5, so we will put here y plus 5। solve this, x plus 5 which is equal to 3y plus 15। तो यहां से हमको पहला इक्वेशन मिलने वाला है x minus 3y which is equal to 15 minus 5 that is 10। this will be my first equation। Similarly, case 2, what is said in case 2, 5 years ago, 5 years ago what they have said, Jacob's age was 7 times that of his son। Jacob's age was 7 times that of his son। तो तब का जैकब का एज क्या होगा, व्हाट विल बी द एज ऑफ जैकब दैट टाइम 5 years ago? X minus 5. एंड सन Y minus 5. y माइनस 5। ये केस में हमको कंडीशन क्या बोली है, जैकब जो है वो 7 times है किसके, सन के। तो जैकब का एज क्या है, x minus 5 which is equal to 7 in bracket y minus 5। solve this, you will get the second equation। तो x minus 5 which is equal to 7y minus 35। so what is the second equation then, x minus 7y which is equal to minus 35 and plus 5, it will give us minus 30। is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. After getting the two equations, you know what to do.
For substitution method, just apply the substitution method and find out the value of x and y. चलो ढूंढो. Find out the value of x and y. X is equal to 40 and y is equal to 10. Is it so? Everyone is getting the same answer? Yes, sir. Okay. चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर अभी. See the next topic. Next topic is elimination method. जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड. ओके. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, which type of methods are this? Which type of methods are this? Algebraic methods. Correct, algebraic methods. Okay, do remember that. Now, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग रूल देखा था, वैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का भी वर्किंग रूल देखेंगे. ओके. काफी इजी है एलिमिनेशन मेथड भी. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स द मीनिंग ऑफ द मेथड. यहाँ पे हमको दो वेरिएबल है हमारे पास, तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल. एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, फ्रॉम दैट वी कैन जनरेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल. ओके. So see the working rule. You have to write this complete page in your CW. Okay. ये जो एलिमिनेशन मेथड आपको हेडिंग देना है, उसका वर्किंग रूल आपको लिखना है. उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, वो एग्जाम्पल भी आपको लिखना है. एंड आफ्टर दैट ओनली यू आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज. Okay. So first we will read the working rule. What they have said, find the LCM of the coefficients of the variable. Suppose x is the variable जिसको हमको eliminate करना है. Okay. हमारे पास दो variable है x और y. तो x variable को हमको eliminate करना है. Okay. In a given equation, hence multiply the given equation by suitable number such that the coefficient of the variable x numerically आर इक्वल इन बोथ इक्वेशंस. ओके. आपको एग्जांपल देखने के बाद डेफिनेटली समझ में आएगा. हम लोग अभी जस्ट रीड करेंगे कि क्या है वर्किंग रूल. इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट वेरिएबल एक्स हैव सेम साइन. ओके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोएफिशिएंट का साइन सेम होता है तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. ये आपको यानी याद रख लेना है हमेशा के लिए. Whenever the sign of the coefficients are same, that time which operation you are going to perform? Subtraction. And whenever opposite signs are there of the coefficient, then which operation you are going to perform? Addition. Is it clear to you? Same sign. Okay. Same sign जब होगा तो आप subtraction का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. एस 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 ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो. देखो पहला लेटर एस 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 है. सेम साइन सब्सट्रैक्शन. ओके. डिफरेंट साइन एडिशन. डिफरेंट साइंस एडिशन. ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज if you make mistake here, then definitely your answer will come wrong. Okay. Next, solve the equation obtained in step 2 as the linear equation of one variable y. Substitute the value of variable y obtained in step 3 in either of the given equation and find out the value of other variable x. Okay. हम लोग example देखते हैं सीधा सीधा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि एलिमिनेशन मेथड क्या है. वही एग्जाम्पल देखेंगे जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के लिए देखा था. नाउ सी हियर,
first equation x plus y which is equal to 7, and second equation is what, 3x minus 2y which is equal to 11. अभी यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कौन से हैं मेरे पास, x और y। मुझे आप बताओ मैं कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करूं, या x को एलिमिनेट करूं या y को। y को एलिमिनेट करो, आई कैन एलिमिनेट बोथ द वेरिएबल्स, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं दोनों भी बताता हूँ आपको, अब दोनों भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। अभी मुझे बोलो, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल इन सेकंड इक्वेशन? -2. -2। -2. ओके, 2 है या फिर -2 है, ओके, 2 -2 इट्स सेम ओनली। हाँ, तो मुझे जो है ना, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल के कोएफिशिएंट के जगह पे 2 लाना पड़ेगा। आई हैव टू मेक द कोएफिशिएंट सेम। ये सबसे मेन रूल होता है एलिमिनेशन मेथड का, क्योंकि आपको कोई वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना है तो आपको कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग y वेरिएबल को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो हमको y वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 2, उससे मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो व्हाट इट विल बिकम, 2x plus 2y which is equal to 14. Second equation will be as it is. Now can you see the coefficients of y variable have become same? Can you see it? The coefficients have become same. 2 2 आ गया यहाँ पे। ओके, फॉरगेट अबाउट द साइन, साइन के लिए अभी हम लोग यहाँ पे ये चीज अप्लाई करेंगे। अभी मुझे बोलो ये कोएफिशिएंट का साइन सेम है या डिफरेंट है? कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है या डिफरेंट है? Different. तो कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? Thus, addition. एडिशन, करेक्ट। तो ये +2y और -2y कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। 2x प्लस 3x कितना होता है? 5x, 5x. विच इज इक्वल टू 14 प्लस 11 कितना होता है? 25. तो x इज इक्वल टू 5 मिलेगा हमको। देखो सब्स्टिट्यूशन में भी हमने यही एग्जाम्पल सॉल्व किया था, देयर ऑल्सो वी गॉट x इज इक्वल टू 5 ओनली। Okay, see, we have eliminated the y variable, so we got the value of x variable. Now, after getting the value of x variable, what we will do? Put x is equal to 5 either in equation 1 or in equation 2. Choice is yours. कहीं पे भी put करो, आपको y का value मिलेगा. Put x is equal to 5 in equation. Suppose I am putting in 1. So 5 plus y which is equal to 7. So y will come 7 minus 5, that is 2. Okay. So y will come 2. Okay. Same problem को अभी हम लोग x वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। हाँ, x भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। x plus y which is equal to 7. This is my first equation. And second is 3x minus 2y which is equal to 11. This is my second equation. तो अभी देखो x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो कोएफिशिएंट चेक करना पड़ता है हमको। यहाँ पे x वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है सेकंड इक्वेशन में? इट इज 3। फर्स्ट इक्वेशन में मुझे 3 लाना पड़ेगा तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। ओके, सो इट विल बिकम 3x plus 3y which is equal to 21. Second equation I will write it as it is. Okay, now the coefficients have become same for same sign, और दोनों का साइन भी सेम है, ये भी +3 है ये भी +3 है, दोनों का साइन सेम है। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूं अभी यहाँ? Subtraction. सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते समय यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस लिखना है आपको। ओके, ये जो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, ये माइनस, ये 3x का माइनस है, ये -2y जो है इसका माइनस ये है, 11 का माइनस ये है। ओके, ये वाले डिजिट्स का साइन है ये जो नीचे लिख रहे हैं हम लोग। नाउ +3x एंड -3x कैंसिल, यहाँ पे x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया हमने। तो देखो, minus into minus, this is -2y, and again in bracket there is a minus sign, so this will become +2y. So 3y plus 2y, it will come 5y. Minus into minus, it became plus. Huh? This minus and this minus, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस कर देगा उसे।
Now 21 minus 11, 21 minus 11 कितना आता है? 10. 10। तो y कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी y 2 ही मिल रहा था हमको। आंसर चेंज नहीं होता है, आप किसी को भी एलिमिनेट करो, x को y को किसी को भी एलिमिनेट करो, आंसर रिमेन्स द सेम। वंस you get the value of y, put y is equal to 2 either in equation 1 or 2। अभी यहाँ पे हम लोग equation 2 में पुट करते हैं। चलो यहाँ पे 1 में पुट किया था, अभी 2 में पुट करेंगे। सो 3x minus 2 into 2 which is equal to 11. So 3x minus 4 which is equal to 11. So 3x will be equal to, so 11 plus 4 it will become 11 plus 4 it will become, so it will come 15. So x is equal to what? 5. Is it clear to you? Is it clear to you? Elimination method. बस ये चीज ध्यान में रखिए, साइन सेम हो तो सब्सट्रैक्शन करना है, साइन डिफरेंट हो तो एडिशन करना है, और जो वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स हमको सेम करना पड़ते हैं। ओके, see this page you have to copy it as it is in your CW, you can take the screenshots also. Okay, so we will start the exercise then. एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो इक्वेशन है आपको, इनको सबसे पहले आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, और यही इक्वेशंस को आपको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। दोनों केस में आंसर सेम आने वाला है। एक्स और वाई का जो वैल्यू है इट विल नॉट चेंज, इट विल कम सेम ओनली इन बोथ द केसेस। ओके, तो पहले पहले हम लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए x plus y which is equal to 5, this is my first equation, and next is 2x minus 3y which is equal to 4, this is my second equation। चलो बोलो कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, x को करना है या y को करना है? X. x को करना है। ओके, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इन ऑर्डर टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एज सेम। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 10, और नीचे वाला 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4। अभी कोएफिशिएंट सेम हो गया है। ओके, कोएफिशिएंट सेम हो गया है, और कोएफिशिएंट का साइन क्या है? सेम है। तो साइन जब सेम होता है तो हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? सब्सट्रैक्शन। ओके, तो ये प्लस 2x और माइनस 2x, ये x वेरिएबल यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। नाउ दिस माइनस 3y into this minus, this will become plus। okay, so 2y plus 3y it is nothing but 5y which is equal to 10 minus 4, 10 minus 4, 6. 10 minus 4 6, so y is coming 6 by 5, whether it is coming in fraction or is there any mistake? Sir, it's in fraction only. okay, so ये मिल गया हमको y, so put y is equal to 6 by 5 in equation 1। ओके, 1 2 आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो। सो x प्लस 6 by 5 which is equal to 5, so x will be what? 5 minus 6 by 5। तो इसको सॉल्व करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा? इट विल कम 19 अपॉन 5। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 19 अपॉन 5। ओके, so this was with the help of elimination method. Here you will mention it by elimination method. Okay,
by elimination method. ओके, अभी यही क्वेश्चन आपको एज इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज मेंशन यू हैव टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन आल्सो एंड सब्स्टिट्यूशन आल्सो. ओके, सो अभी यहाँ पे सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन से अभी फिर से इसको सॉल्व करेंगे. x plus y is equal to 5. This is my first equation. And 2x minus 3y which is equal to 4. This is my second equation. By substitution method now. Substitution method. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x वेरिएबल का वैल्यू जनरेट करेंगे. तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई. नाउ पुट x is equal to 5 minus y in इक्वेशन. कौन से इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, चलो बोलो. Equation 2. क्योंकि हमने वैल्यू इक्वेशन 1 से जनरेट किया है. सो 2 इन ब्रैकेट 5 माइनस वाई माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4. तो ये 10 माइनस 2y माइनस 3y विच इज इक्वल टू 4. तो ये माइनस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 6. ये 10 को उधर शिफ्ट करने के बाद 4 माइनस 10 इट विल गिव माइनस 6. तो ये माइनस माइनस कट गया, तो y इज गोइंग टू कम व्हाट, 6/5. y इज इक्वल टू 6/5. एक बार मुझे y का वैल्यू मिल गया तो मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1. ओके, 1 2 आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो, या फिर आप 3 में भी पुट कर सकते हो ये वाले इक्वेशन में. चलो यहाँ पे 3 में पुट करते हैं. तो x विल बी व्हाट, 5 माइनस 6/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5. सो x विल कम व्हाट, 19/5. वी गॉट द सेम आंसर. एलिमिनेशन में भी यही मिला था, देखो हमको 19/5 एंड 6/5. ओके, इज इट क्लियर टू यू? Just mention the name of the method which you are applying. Okay, substitution अगर apply कर रहे हो तो by substitution method. Okay, is anyone having any doubt? Is anyone having any doubt? No, sir. चलो फिर अभी second, third, fourth, I think so 4 questions are there in question number 1. चलो सॉल्व करो उसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से. चलो मैं फोर्थ वाला आपके लिए सॉल्व करता हूँ. ओके, आई विल डायरेक्टली सॉल्व द फोर्थ वन. सेकेंड थर्ड आप लोग सॉल्व करोगे, मैं फोर्थ वन सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली आपके लिए. ओके, नाउ सी हियर. Now x upon 2 plus 2y upon 3 which is equal to minus 1, and here x minus y by 3 which is equal to 3. These are our two equations. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में 3x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू -1. सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3. अब ये 6 को इधर भेज देंगे हम लोग RHS में, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू -6 and 3x minus y which is equal to 3 3s are 9. Now this will be my first equation and this will be my second equation. उसके बाद आपको पता है एलिमिनेशन लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे देखो ऑलरेडी x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग x वेरिएबल को ही एलिमिनेट करते हैं. चलो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड. Okay, so what is there in the elimination method? By elimination method,
एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग दोबारा। तो ये 3x, ये है -y विच इज इक्वल टू 9। देखो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये +3x -3x कैंसल हो गया, minus into minus, this will become plus y, so 4y plus y, it will become 5y, which is equal to -6, and -9, this will become -15. So y will come what, -3. Y will come what, -3. Once you get the value of y, put y is equal to -3 in इक्वेशन, चलो 2 में पुट करते हैं अभी। तो 3x माइनस इन ब्रैकेट -3 विच इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 9। सो 3x विच इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाने के बाद -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। सो x विल कम इक्वल टू 2। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. So can you do the remaining two questions, or should I solve those also? The second and third. Okay, you're going to do that. Very nice. फिर यही क्वेश्चन को आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। ओके, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए भी आप फिर से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे और वो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा फिर से वर्डेड प्रॉब्लम्स वाला है, लाइक इन लास्ट एक्सरसाइज। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solution by elimination method. Last केस में जो worded problems थे वहां पे हम लोगों ने substitution method का यूज किया था, यहाँ पे हम लोग elimination का यूज करेंगे। Now what they have said, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? Okay. तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, क्योंकि फ्रैक्शन किससे बना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। सो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो केस वन, व्हाट इज इन केस वन, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. A fraction reduces to 1. ओके, तो अभी हमारा न्यूमरेटर क्या है, x है, डिनोमिनेटर क्या है, y। तो ये फ्रैक्शन बन गया। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हम लिखते हैं साथ में, दिस इज अ फ्रैक्शन। ओके, सो अभी हमको क्या बोला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो पहले हमारा न्यूमरेटर कितना था, x, उसमें हमको एक जोड़ देना है। और हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो था हमारा पहले क्या था, y, उसमें से हमको एक सब्सट्रैक्ट करना है। ये सब करने के बाद फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, दैट मींस इट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से एक इक्वेशन जनरेट होगा, व्हाट इट विल बी, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू y माइनस 1। सो ये हो जाएगा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2। दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आया क्या आप लोगों को?
Is anyone having any doubt here in this step? सिमिलरली केस 2 में क्या गिवन है देखो, केस 2 में हमको क्या बोला है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन becomes half if we only add 1 to the denominator. ओके, तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज. बस हमको क्या बोला है, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देना है, तो वो केस में फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/2 बनता है. ओके, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x विच इज इक्वल टू y प्लस 1. सो 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. यहाँ पे देखो ऑलरेडी y वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो y वेरिएबल को एलिमिनेट करना इजी जाएगा आपको. ओके, डायरेक्टली यू कैन एलिमिनेट द वेरिएबल y एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. एक बार x का वैल्यू मिलने के बाद फिर से आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे उसको, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा. सो टेल मी द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर नाउ. What will be the value of x and y? X is equal to 3 and y is equal to 5. So what will be the fraction, Shravani? 3/5. Correct, 3/5. ओके, अभी श्रावणी एक काम कीजिए, 3/5 आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर में एक ऐड कीजिए, व्हाट इट विल बिकम 4, और डिनोमिनेटर से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, so 5 minus 1 it will become 4. So 4/4 it is coming 1. That means first case is satisfied. Similarly check for the second case. न्यूमरेटर क्या है आपका 3, डिनोमिनेटर क्या है आपका 4. 4 plus 1 it will become 5. So 3 upon 6 it will come 1/2. Second case is also satisfied. इस तरीके से आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो खुद का. Is it clear to you? Any doubt to anyone till here? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. Okay, I will explain this next question tomorrow. Okay, further questions don't do it, I will explain it, then we will continue. सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन करोगे आप, सेकंड में फर्स्ट वाला क्वेश्चन वहीं तक सॉल्व करोगे आप. ओके, उसके बाद का हम लोग कल देखते हैं, बिकॉज नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. So we will stop here, complete till question number 2, first one. Okay, और आपको सबसे पहले वो एलिमिनेशन मेथड वाला जो पेज है वो लिखना है, वर्किंग रूल एंड ऑल. उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे. प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस, प्रथमेश वल्लकट्टी. Yes, sir, I have sent you. I didn't got it. Now it came. Okay, so we'll stop here. Tomorrow we will continue. Thank you and bye to everyone.